Hello everyone, welcome to session. In this session, we're going to do time, speed and distance part 8. In previous sessions, we have discussed these topics and today we'll be doing the concept of races. So races can be of two types depending on the track. If your track is linear, that is called the linear race. If your track is circular, that is called the circular race. So if we see like in linear races, there are not as such any new concept. In circular races, there are few concepts that need to be discussed. But today we'll be discussing linear races. So let's see. So linear track, like the races on the linear track will be called as linear races. So linear races होंगी तुम्हारी. And in races, linear races, if you see, there are, as I told, there is no new concept. Till now, whatever we have learned, that thing will be using, like, we'll be using this equation d equal to st. And most of the time, like, you have to just observe where you can compare. Like, when your time is constant, you can compare speed and distance, and where your speed is constant, you can compare like your distance and time. And sometime your distance will be constant and you need to compare speed and time. So these are the things that you have to just observe कि क्या चीज compare कर सकते हो. If you are able to do this thing, you will be able to easily deal with these type of questions. So now let's see the question. As I told, there is no any new thing. ठीक है, you already know that is required. So Sam beat Ram in a race of 800 meter. So there is a race of 800 meter. This is 800 meter by 20 meter or 5 second. तो इसमें थोड़े टर्म्स होते हैं, उनका मतलब समझना. सैम बीट्स राम. तो सैम बीट्स राम, इट मीन्स सैम विल फिनिश रेस अर्लियर देन राम. Sam will finish the race earlier than Ram, and it's a race. So Sam and Ram will starting from same point and same time. So Sam will beat Ram in race of 800 meter by 20 meter. So it means Ram will be here when Sam will reach the like final point, है ना. जब यहाँ पर पहुंच जाएगा विनिंग पॉइंट पर, then Ram will be 20 meter behind, and it is also R by 5 second. R by 5 second, what it means? It means like Ram will still take 5 seconds to reach the final point. Is it clear? So this way you need to find the speed of Ram. So speed of Ram will be Ram is 20 meter behind this point, behind the like जहाँ पे मैं पहुँचना है, and also Ram will take 5 seconds. So this is simple. Speed of Ram is 20 upon 5. 20 मीटर कवर करने में राम को 5 सेकंड लगेंगे, एंड दैट इज द आंसर. सो दिस इज 4 मीटर पर सेकंड. स्पीड ऑफ राम इज 4 मीटर पर सेकंड. इन अ 100 मीटर रेस अकबर गिव्स बीरबल अ स्टार्ट ऑफ 2 सेकंड. तो देखो इसका भी मतलब क्या होता है. ये 100 मीटर की तुम्हारी रेस है एंड अकबर गिव्स बीरबल. अकबर यहाँ पर है, बीरबल भी यहाँ पर है, बट अकबर सेज टू बीरबल कि यार तुम स्टार्ट करो, आई विल स्टार्ट आफ्टर 2 सेकंड्स. जब तुम 2 सेकंड चल लोगे उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है. बीरबल कवर्स 10 मीटर बाय द टाइम अकबर स्टार्ट. तो इतने टाइम में 2 सेकंड में बीरबल क्या करता है, 10 मीटर कवर कर लेता है. तो नाउ बीरबल इज हेयर एंड इन 2 सेकंड. सो इससे देखो बीरबल की स्पीड निकल आएगी. स्पीड ऑफ बीरबल कवर 10 मीटर इन 2 सेकंड्स. सो दैट इज 5 मीटर पर सेकंड. स्पीड ऑफ बीरबल 5 मीटर पर सेकंड. इफ बोथ ऑफ देम फिनिश टुगेदर, अगर दोनों साथ में फिनिश करते तो लाइक अब जो फाइनल यहाँ पर होगा तो अकबर बीरबल यहाँ पर होंगे. अब यहाँ से ऑब्जर्व करो क्या हुआ. अब जी देखो कहाँ पर तुम टाइम कांस्टेंट बना सकते हो, क्या चीज कांस्टेंट कर सकते हैं. 2 सेकंड के बाद देखो अकबर यहाँ पर है, बीरबल यहाँ पर है, एंड व्हेन रेस विल फिनिश बोथ विल बी हियर. तो टाइम कांस्टेंट है ना, लाइक 8 पे सपोज यहाँ पर बीरबल है तुम्हारा, 8 पर अकबर है. नाउ दे आर स्टार्टिंग द रेस. इससे पहले तो उसको हेड स्टार्ट दिया है, दैट इज अ हेड स्टार्ट भी बोलते हैं, ठीक है. इसे तो अभी हेड स्टार्ट मिला है दैट 10 मीटर का. नाउ दे विल स्टार्ट. अब ये दोनों साथ में स्टार्ट करेंगे, लाइक इट विल बी मूविंग बट अकबर विल स्टार्ट नाउ. तो 8 पे दोनों स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर सेम टाइम पे पहुंचेंगे. सपोज 10 ओ क्लॉक पर यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि बोथ रीचेस डेस्टिनेशन एट सेम टाइम, है ना, बोथ फिनिशेस टुगेदर. तो टाइम सेम है. अगर टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो में होगा. स्पीड ऑफ अकबर, स्पीड ऑफ बीरबल, और इनका रेशियो किस में, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस में सेम होगा. अकबर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 100 मीटर. बीरबल ने कितनी कवर की है, 80 मीटर, 90 मीटर, है ना. बीरबल ने यहाँ से कवर की 90 मीटर. तो यहाँ पर वैल्यू रख दो. वी हैव टू फाइंड बीरबल की. देखो हमें पता है, तो अकबर की स्पीड हो जाएगी 10/9 इंटू 5, दैट इज 50/9 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर. आई होप दिस थिंग इज क्लियर.
in a 200-meter race, Raj gives Ram a start of 20 meter and beat him by 20 meter. तो एक 200 मीटर की रेस है एंड राज गिव, तो राज यहाँ पर है, राज गिव राम को 20 मीटर का हेड स्टार्ट भी इसे बोलते हैं, ठीक है, 20 मीटर का इतने दिया, राज गिव्स राम अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर एंड बीट हिम बाय 20 मीटर। और जब फाइनली हुआ तो राज विल रीच हियर बट राम इज स्टिल 20 मीटर बिहाइंड। इफ राज बीट राम बाय 4 सेकेंड, नाउ राज बीट राम बाय 4 सेकेंड, राज जो है राम को बीट कर रहा है 4 सेकेंड से, तो इट मीन्स राम को अभी भी 4 सेकेंड लगेगा डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। तो इससे राम की स्पीड निकल आएगी, स्पीड ऑफ राम इक्वल्स टू 20/4 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, राम की स्पीड निकलेगी एंड राज की स्पीड निकालनी। तो एक चीज देखो, लाइक ये सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे एंड 10 o'clock पर राज यहाँ पर है, राम यहाँ पर है ना, राज यहाँ पर पहुंच गया, सेम टाइम पर स्टार्ट करते, राज यहाँ पहुंच गया बट राम यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगेन तुम्हारा टाइम कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड का रेशियो राज टू राम विल बी इन डिस्टेंस। तो राज ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 200, राम ने टोटल कितनी ट्रेवल की, 40 है ना, 20 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, 20 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, 160। तो दिस इज द रेशियो। तो स्पीड ऑफ राज विल बी, राम की स्पीड में पता है, डेट इज 520/16, सो डेट इज 100/16। दिस इज द स्पीड ऑफ राज मीटर पर सेकेंड। दिस वे वी हैव टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हो सकता है समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि राम पीछे से, लाइक राज पीछे से स्टार्ट करे, राम यहाँ से स्टार्ट, ठीक है, तो उसमें भी ऐसे इक्वेशन बना लोगे। ओके, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। करण एंड अर्जुन रन अ 100-meter रेस इन विच करण बीट्स अर्जुन बाय 10 मीटर। करण एंड अर्जुन रन अ रेस ऑफ, हाँ देखो ये वाला केस आ गया, 10 मीटर बिहाइंड है, ठीक है, इसकी मैं बात करूँ। करण एंड अर्जुन रन अ रेस ऑफ 100 मीटर, करण बीट्स अर्जुन, करण, इट मीन्स करण विल रीच द लाइक जो फिनिशिंग लाइन है ना, अर्जुन बाय 10, अर्जुन यहाँ पर होगा। जब करण अपनी फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया होगा, अर्जुन विल बी 10 मीटर बिहाइंड। टू डू अ फेवर टू अर्जुन, अर्जुन को फेवर करने के लिए, बिकॉज अर्जुन इज लूजिंग द गेम, तो अर्जुन को फेवर करने के लिए करण स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। करण ने बोला कि आई विल स्टार्ट 10 मीटर बिहाइंड यू, करण स्टार्टेड 10 मीटर बिहाइंड अर्जुन एंड इन अ सेकेंड 100-meter रेस। अच्छा, रेस 100 मीटर की है तो रेस यहीं से काउंट होगी, ठीक है, काउंट यहाँ से होगा, बट करण 10 मीटर बिहाइंड से स्टार्ट कर रहा है, रेस यहीं से काउंट होगी। अब ये मत कर देना कि टोटल 100 होगा, ठीक है। दे बोथ रन एट द अर्लियर स्पीड, जैसे से स्पीड में कोई चेंज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कनेक्शन विद द सेकंड रेस, तो बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो इफ यू चेक दिस थिंग, यहाँ पर टाइम बराबर है, सो दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं और लाइक एक पर्टिकुलर टाइम पे करण इज हेयर एंड अर्जुन इज हेयर, सो टाइम सेम है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ करण एंड स्पीड ऑफ अर्जुन, इनका रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। करण हैज कवर्ड 100 मीटर, अर्जुन हैज कवर्ड ओनली 90 मीटर, तो 10:9 इज द रेशियो ऑफ करण एंड अर्जुन से स्पीड। करण और अर्जुन की स्पीड का रेशियो 10:9 है। नाउ अब दूसरा सिचुएशन क्या है, करण 10 मीटर बिहाइंड से स्टार्ट कर रहा है, तो सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं एंड सेम पे स्टार्ट कर रहे हैं। और अच्छा, हमें बताना है कि क्या सिचुएशन होगी, रिजल्ट क्या होगा, आई थिंक ये बताना है। करण फिनिशिंग द लाइन साइमल्टेनियसली, है ना, अर्जुन बीट्स, करण बीट्स, ओके, तो हमें ये बताना है कि फाइनल क्या होगा। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, अगेन टाइम सेम होगा, है ना, दे आर स्टार्टिंग, तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर देखते हैं क्या, तो टाइम सेम होगा, तो स्पीड ऑफ करण, स्पीड ऑफ अर्जुन एंड नाउ इसका, अगर करण को सपोज यहाँ पर पहुंचना है तो करण विल कवर 110, करण को सपोज यहाँ पर पहुंचना है, अगर करण 110 करता है तो अर्जुन का कितना होगा। इफ यू आर एबल टू फिगर आउट दिस डिस्टेंस, है ना, उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि करण जब फिनिश कर रहा है तो अर्जुन कहाँ पर है। अगर करण 110 किलोमीटर कवर कर रहा है, 110 मीटर कवर कर रहा है, तो अर्जुन कितना कवर कर रहा है। या फिर तुम ये भी चेक कर सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि अर्जुन पहले पहुंच जाएगा तो अर्जुन का देखो, अगर अर्जुन 100 मीटर करता है तो
करंट कहाँ पर होगा। ये दो चीजें सॉल्व करके यू कैन फिगर आउट योर आंसर। तो पहले ये करते हैं, बिकॉज आई एम लाइक, मुझे लग रहा है कि करण बीट कर देगा फिर भी अर्जुन को। करण विल स्टिल बीट द अर्जुन, आई हैव दिस गट्स, है ना। दैट्स वाई मैं ऐसे कर रहा हूँ, अदरवाइज तुम ये भी चेक कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर ये वाला सही है तो इसमें एक्स की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी 110 से, तो मतलब करण यहाँ कहीं पर होगा जब अर्जुन यहाँ कहीं पर होगा। तो पहले ये चेक कर लेते हैं। तो रेशियो में पता ही है 10:9 है, तो दिस इज 99। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 99 आ गई। सो इट मीन्स अर्जुन मस्ट हैव कवर्ड 99 मीटर्स। जब करण ने 110 मीटर, करण इज हेयर, अर्जुन ने 99 मीटर कवर किए। अर्जुन इज 1 मीटर स्टिल बिहाइंड द फिनिशिंग लाइन, तो करण बीट्स अर्जुन बाय 1 मीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अगर हम ये वाला केस लेते हैं, फिर टेक दिस वन केस, तो मैं दूसरा बता रहा हूँ कि सपोज अर्जुन, वी डोंट नो ना लाइक कौन पहले फिनिश करेगा, तो मैंने गट्स के बेस पे सॉल्व किया। अब अगर सपोज अर्जुन ने 100 मीटर कवर कर लिए होंगे, तो करण कहाँ पर होगा। दिस इज अगेन वही ये वाली चीज यूज करके, रेशियो में पता है 10:9, तो दैट इज 1000/9। तो 1000/9 इज दैट इज 111.1 ना। तो ये रेस पहले फिनिश कर चुका होगा और अर्जुन ने बाद में फिनिश की है, तो दैट्स वाई यहाँ पर ये वाला स्टेट जो पिछले वाला था वो वैलिड होगी, क्योंकि रेस तो 110 मीटर की थी, वो बाद में क्यों दौड़ेगा, है ना। बाद में करण क्यों ये 1.1 एक्स्ट्रा मिनट क्यों कवर करेगा, डिस्टेंस क्यों कवर करेगा। ही हैज ऑलरेडी फिनिश द रेस एट 110, तो 110 पे स्टॉप हो जाएगा। इट मींस दिस इज नॉट द केस जो प्रीवियस वाला हमने किया वो केस था। आई होप समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इससे हम कैसे करेंगे, फिर से मैं फाइल समराइज कर दे रहा हूँ। तो इसमें क्या करोगे, तुम्हें रेशियो पता है स्पीड का। अब मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, अगेन ये गट्स के बेसिस में अज्यूम कर रहा हूँ, दोनों सिचुएशन मैं तुम्हें दिखा दी है। करण अगर अपनी रेस फिनिश कर लेगा तो अर्जुन की पोजीशन क्या होगी। अगर टुगेदर फिनिश करेंगे तो अर्जुन का 100 आ जाएगा, है ना। तो 10/9 स्पीड का रेशियो में पता है, वो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, और टाइम कांस्टेंट है यहाँ पर, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो दैट इज x99। तो इट मीन्स when Karan has covered 110 meter, Arjun has covered 99 meter. It means Karan has again beaten the Arjun by 1 meter. Clear? 3 races A, B, C. Run a race with a runner A finishing with runner A. ओके, तो 3 रनर है ABC। अभी तक हमने 2 के डिस्कस किए थे, नाउ देयर आर 3 रनर्स विद A फिनिशिंग 12 मीटर अहेड ऑफ B। A फिनिशिंग, अच्छा देखो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखा था अगेन, 18 के जो बैच थे, 19 के, 20 के, और ये क्वेश्चन 2019 में आया था। अगेन क्वेश्चन 2020 में आया था, सिमिलर क्वेश्चन, और मैंने इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला भी बता रखा था। एंड आई हैव टोल्ड द लाइक बिना फॉर्मूला के भी कैसे कर सकते हैं। तो अगर किसी ने अगर 19 में भी कवर कर लिया होता तो 20 में एटलीस्ट कर लेता, है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूँ, इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत हाई चांसेस है कि इन्हीं में से एग्जाम में आएगा। 3 रनर्स ABC रन अ रेस विद अ स्पीड फिनिशिंग A फिनिशिंग 12 मीटर अहेड ऑफ B एंड 18 मीटर अहेड ऑफ C। ABC 3 रनर की रेस हो रही है, ABC with runner A finishing the line 12 meter ahead, 12 meter ahead of B and 18 meter ahead of C। 18 मीटर, तो C कहीं यहाँ पर होगा, C और A के बीच 18 का गैप है, B और A के बीच 12 का गैप है। While runner C finishes 8 मीटर बिहाइंड ऑफ C, तो B जब यहाँ पर होगा तो C यहाँ पर होगा 8 मीटर। ठीक है, अगर तुम ये लिखना सीख जाते हो जैसे मैं लिख रहा हूँ, इफ यू आर एबल टू ड्रॉ द फिगर्स, आई थिंक देन आधी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती, क्वेश्चंस बिकम इजियर। इंटायर डिस्टेंस एट पॉइंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेस, लेंथ ऑफ रेस बताना है। तो इसके देखो 2 मेथड हैं। एक तो अभी जो हम करते आ रहे हैं, टाइम कांस्टेंट ले लो, स्पीड का रेशियो निकालो, ये सारे रेशियो निकाल के यू विल बी एबल टू फिगर आउट, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देन देयर इज अ, फिर देखो ये फॉर्मूला आगे मैंने लिख रखा है, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। देन आई एम गोना टेल यू शॉर्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट एनी कैलकुलेशन, ठीक है, यूनिटरी मेथड यूज करके। तो ये 3 चीजें हैं इसको सॉल्व करने की। एक तो बेसिक अभी जो करते हैं, कंपेयर करो टाइम और स्पीड वगैरह को। देन सेकेंड वे कि लाइक फॉर्मूला यूज कर लो। थर्ड वे जो जो बेस्ट मेथड है ना, थर्ड इज द बेस्ट मेथड, यूनिटरी मेथड, सिंपल, नथिंग एल्स। सो फर्स्ट लेट्स चेक इसको बेसिक से कैसे करोगे। आई विल गिव यू द हिंट एंड यू हैव टू ट्राई, ठीक है। देखते हैं, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, ABC ट्रेवल कर रहे हैं, तो A यहां पर है, B यहां पर है, C यहां पर है, सेम टाइम पर, देर स्टार्टिंग एट सेम टाइम, A इज हेयर, B इज हेयर, C इज हेयर।
तो स्पीड रेशियो ए और बी का कितना होगा, ए एंड बी का, एंड वी डोंट नो द लेंथ ऑफ द रेस, तो लेंथ ऑफ रेस का एक्स ले लेते हैं। तो दिस वे आई थिंक इट बिकम कॉम्प्लिकेट टू सॉल्व। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिक मेथड जो हम पीछे करते हैं। एक्स है तो ए एक्स कवर करेगा, बी कितना कवर करेगा, एक्स माइनस 12। और अगर एस ए और एस सी को हम ले तो ए कितना कवर करेगा, एक्स, सी कितना कवर करेगा, एक्स माइनस 18। ठीक है, टाइम कांस्टेंट है और स्पीड जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के, स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो होगा। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। एंड अगर यहाँ से चाहें हम बी और सी का भी रेशियो निकाल सकते हैं, बी और सी का रेशियो यहाँ से निकाल लो, लाइक कहीं से भी निकाल सकते हैं। लाइक यहाँ पर भी हमें पता ना इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, यहाँ पर भी पता है। तो बी ने एक्स किए तो सी ने कितना किया, एक्स माइनस 8 किया है। सो दिस इज द लाइक ऑल द रेशियोज। अब हमें लेंथ बतानी है, तो यहाँ से देखो, अगर तुम इफ यू चेक इट हेयर, बी और सी का रेशियो यहाँ से देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ बी एंड सी फ्रॉम हेयर। तो लाइक बी एंड सी दैट विल बी, बी और सी का इन दोनों को यूज करके मैं निकाल लूँ रेशियो। ठीक है, तो दैट इज बी एंड सी, सी है ना, सी तो ऐसे ही आ जाएगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, एक्स माइनस 12 अपॉन एक्स एंड एक्स, एक्स माइनस 18 था, हाँ 18 है, 18 ही 18 है, इट्स गेट कैंसल्ड। अब स्पीड ऑफ बी और स्पीड ऑफ सी का रेशियो देखो इधर, इन दोनों का रेशियो तो सेम ही रहेगा, तो एक्स माइनस 12 अपॉन एक्स माइनस 18, इनको सॉल्व कर लो, विल गेट द आंसर। ठीक है, इस इक्वेशन लाइक एक्स, एक्स माइनस 18 and equals to x minus 12 x minus, सॉल्व दिस इक्वेशन, x की वैल्यू ही तुम्हारा आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स 1296। आई होप ये इक्वेशन तुम्हें ओपन करना आता होगा, कैसे मैं कर रहा हूँ तुम समझ पा रहे हो चीज़, नहीं पता तो धीरे धीरे सीख जाओगे, इतना जल्दी मैं कैसे कर पा रहा हूँ लाइक। ठीक है, ओपन करना हुआ आता हो, अलजेब्रा में बता दूंगा एनीवे। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 96, तो x इक्वल टू आ गया 48, तो लेंथ ऑफ रेस इज 48। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू सॉल्व। सेकेंड मेथड, फॉर्मूला चेक करते हैं। फर्स्ट मेथड इज क्लियर, सेकेंड मेथड, इन जनरल वी कैन से इन अ रेस ऑफ x मीटर। देखो ये फॉर्मूला मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिन्हें समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दे थिंक यार फॉर्मूला मिल जाए तो आसान है, वो फॉर्मूला याद कर लेते हैं। आई एम नॉट द पर्सन दैट कैन रिमेंबर, मुझसे याद नहीं होता, बट जो लोग याद कर पाते हैं उनके लिए बेटर है ना, एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगी। तो दैट्स वाई आई प्रोवाइड फॉर्मूलाज ऑल्सो जहाँ पर होता है। तो ये जैसे 19 में क्वेश्चन आया था, तो कुछ लोगों को शायद ये अप्रोच समझ में ना आ रही हो, दे स्टिल यूजिंग द लेंथी अप्रोच, जो भी हमने अप्रोच डिस्कस की वो अप्रोच डिस्कस यूज़ कर लूँ, जो भी मैं फाइनल अप्रोच बताऊंगा शायद उन्हें समझ में ना आए, है ना, तो उनके लिए बेटर है फॉर्मूला याद कर लूँ। तो अगर उन्होंने फॉर्मूला याद कर लिया होता तो 20 में एटलीस्ट वो एक क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाते हैं। चलो, तो ये फॉर्मूला देखो क्या है, रेज ऑफ एक्स मीटर, ए बीट्स बी, ए बीट्स बी, तो ए बी सी ले लेते हैं, ए बीट्स बी बाय 12 मीटर, ए बीट्स बी बाय ए हो गया तुम्हारा 12, बी बीट्स सी बाय बी, बी बीट्स सी, ये वाला केस ना, बी बीट्स, ये आप बाद में चेक कर लेना, ठीक है, बी फिनिशेस 8 मीटर, तो डेट इज 8, डेट इज 8, ए बीट सी, ए बीट सी बाय दिस, तो ए बीट सी कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 18 इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स माइनस ए है 12, एक्स माइनस 8, ये भी इतना आसानी, बट इसमें ये है कि वैल्यू पुट करोगे तो आंसर तुम्हें आ ही जाएगा। तो 18x में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा एग्जाम में, एक्स स्क्वायर, वही इक्वेशन आ रही सिमिलरली, माइनस 20x प्लस 96, 18x, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, सेम आ गया, एक्स माइनस 96, तो ये इधर जाएगा माइनस 2x इक्वल टू माइनस 96, एक्स इक्वल टू 48, सॉल्व हो गया। तो दिस वे तुम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं फाइनल अप्रोच, और जो हमें यूज़ करनी है, जो तुम्हें समझनी है और इंपॉर्टेंट है, यूनिटरी मेथड, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही बेसिक सा।
देखो ए फिनिशिंग 12 मीटर अहेड ऑफ बी, ए फिनिशिंग 12 मीटर अहेड ऑफ बी एंड 18 मीटर, सो दैट इज 6 मीटर, सी यहाँ पर होगा, 18 मीटर ए से है ना, बी यहाँ पर। दूसरा सिचुएशन क्या है, बी बीट सी बाय 8 मीटर, बी बीट सी बाय 8 मीटर। यूनिटरी मेथड देखो क्या है, ए बीट्स बी बाय 12 मीटर, ठीक है, बी बीट सी बाय 6, अभी बीट नहीं किया है, बी और सी में देखो 6 का गैप है, बी एंड सी है 6 गैप, और उसके बाद देखो क्या हो रहा है, अभी देखो बी और सी में, बी और सी को हम देखेंगे, बी और सी में गैप है 6 का, 6 मीटर का गैप है बी और सी में। देन बी जब 12 मीटर कवर करेगा, देन बी कवर्स 12 मीटर, तो ये गैप कितना हो जाता, 8 का। तो इसका मतलब देखो, व्हेन बी कवर्स 12 मीटर, 12 मीटर, 12 मीटर, इट इंक्रीजेस गैप, इट इंक्रीजेस गैप और इट क्रिएटेड गैप, है ना, 6 से देखो 8 कर देता है। तो जब बी 12 मीटर कवर करेगा तो इनके बीच में 2 मीटर का गैप क्रिएट हो जाता है, 6 से 8 हो गया ना, पहले 6 गैप था बी और सी का, अब 8 हो गया, 2 मीटर का गैप क्रिएट हो रहा है जब बी 12 मीटर कवर कर रहा है, बी जब 12 मीटर कवर कर रहा है तो 2 मीटर का गैप क्रिएट हो रहा है, और ये 8 मीटर का गैप कितना कवर करने पे हुआ है, पूरी लेंथ, है ना, जब बी ने पूरी लेंथ कवर की है रेस की, तब 8 मीटर का गैप क्रिएट हुआ है, जस्ट यूनिटरी मेथड। तो 8 मीटर का गैप क्रिएट करने के लिए, ये 4 मीटर का, 2 मीटर का गैप क्रिएट करने के लिए बी को 12 मीटर चलना पड़ता है, वी हैव टू रन 12 मीटर। 8 मीटर का गैप क्रिएट करने के लिए बी को कितना चलना पड़ेगा, दैट इज द लेंथ ऑफ द रेस। तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 मीटर का गैप क्रिएट हो जाएगा, तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज द लेंथ ऑफ द रेस। इजियर, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर, जस्ट यूनिटरी मेथड आगे एक दो और क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, यू विल गेट मोर क्लियरिटी। तो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया, बेसिक अप्रोच बता दिया, अब आगे जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आई विल बी यूजिंग द थर्ड अप्रोच, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि यार तीनों ही अप्रोच पता होनी चाहिए, अगर एग्जाम में सपोज ये नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला यूज कर लो, फॉर्मूला नहीं हो रहा बेसिक यूज कर लो, है ना। ए बी सी पार्टिसिपेट इन अ रेस ऑफ एक्स मीटर, बट ऐसा नहीं कि लाइक एग्जाम में तीनों ट्राई करोगे, ये भी मत करने लगा कि वेरीफाई करा रहे आंसर, ये नहीं करना एग्जाम में। एग्जाम में यू हैव टू यूज, इतना प्रैक्टिस कर लेना, देन दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि यार किससे क्वेश्चन फास्टर हो जाएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व यूजिंग दिस अप्रोच आर नॉट, है ना, वो क्लैरिटी आ जानी चाहिए अगर ज़्यादा मार्क्स लाने। इफ यू हैव टू जस्ट लाइक गेट 80% एंड 85%, देन यू डोंट नीड टू वरी दैट मच। एबीसी पार्टिसिपेट इन अ रेस ऑफ एक्स मीटर, है ना, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होंगे कि लाइक उनका क्वांट प्रॉब्लम है, तो दे विल जस्ट ट्राई टू कि यार क्वांट सीधा क्लियर हो जाए, वो लाइक दे विल बी ट्राइंग टू कट क्लियर द कट ऑफ लाइक 90% की या फिर 80% जो भी कट ऑफ है, तो दे डोंट नीड टू वरी, लाइक दे ट्राई टू स्टिक टू द बेसिक क्वेश्चन वाली ओनली, ठीक है। चलो एनीवे, बट आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग देख रहे हैं दे हैव टारगेट हाइयर, है ना, एटलीस्ट 99% इन कैट, क्वांट में एटलीस्ट 99 तो आ ही जाए, से कम तो नहीं आना चाहिए, है ना। ABC participated in a race of X मीटर, तो X मीटर की रेस है, A finishes 18 मीटर ahead of B, A finishes 18 मीटर ahead of B, A finishes 18 मीटर ahead of B and 24 मीटर ahead of, and B finishes 8 मीटर ahead of C। फाइन, तो अब देखो क्या हो रहा है, अभी B और C के बीच गैप कितना है, 6 मीटर, और ये गैप कितना हो गया, जब B ने 18 मीटर कवर किए, B और C के बीच का गैप है 6 मीटर, when B covers 18 मीटर, when B covers 18 मीटर, गैप 8 हो गया, गैप कितने से इंक्रीज कर गया, 2 मीटर का गैप आ जाता है when B travels 18 मीटर, और ये फाइनल गैप जो है B और C के बीच में पूरी रेस के दौरान 8 मीटर हो गया है। B ने जब पूरी रेस कवर की उसकी वजह से 8 मीटर का गैप क्रिएट हुआ है, 8 मीटर की गैप के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 मीटर का गैप हो जाएगा, और ये 72 मीटर, लेंथ ऑफ रेस इज 7। तो जब B 72 मीटर कवर करेगा, देन देयर विल बी अ गैप ऑफ 8 मीटर बिटवीन B एंड C, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है। इन अ 1 किलोमीटर रेस, 1 किलोमीटर रेस, A बीट्स
A beats B by 40 meter and B beats C. B beats C by 25 meter. By how much many meters A beats C in the same race? तो अब देखो इसमें एक चीज देके दूसरी चीज पूछ ली है, इसमें लेंथ ऑफ रेस दिया है तुम्हें और तुमसे पूछ लिया कि ए सी को जब ए यहाँ पर है तो सी कहाँ पर होगा, ठीक है, जब ए यहाँ पर है तो सी कहाँ पर होगा। तो लाइक जब 1000, अब इसको रिवर्स कर लेते हैं, जब 1000 मीटर कवर किए बी ने तो गैप कितने का 25 मीटर का क्रिएट हुआ है ना। 1000 मीटर बी पूरी रेस कवर कर ली तो बी और सी में कितना कितना गैप क्रिएट हुआ 25 मीटर का। यहाँ पर देखो बी ने कितना कवर किया है, बी हैज कवर्ड 960। तो जब बी ने 960 कवर किए होंगे तो बी ने जब 960 कवर, जस्ट यूनिटरी मेथड, बी ने जब 960 मीटर कवर किए होंगे तो कितना गैप होगा, दीजिए आंसर। कितना 24 ना, तो 24 मीटर इनके बीच गैप रहा होगा 24 मीटर। अब पूछ रहा है ए ने सी को कितने से बीट किया, दैट इज 44 मीटर इज योर 64 मीटर, 64 मीटर इज योर आंसर। इजी। बाकी तीनों मेथड से ट्राई करना, बाकी जो दूसरे दो मेथड्स हैं उनसे ट्राई करना। इन अ रेस ऑफ 100 मीटर ए बीट सी बाय 20 मीटर एंड इन द सेम रेस बी बीट सी बाय 20 मीटर। इन अ रेस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर के रेस में ए बीट्स बी, ए बीट्स बी by 20 meter and in the same race B beats C by 20 meter, तो सेम से ही बीट कर रहे हैं। इन अ रेस ऑफ 100 मीटर ए बीट 20 मीटर and this also 20 meter. So you have to find in how many meters can A beats in 500 मीटर। 500 की रेस में तुम्हें बताना है ए और ए सी को कितने से बीट कर सकते। तो लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही कर ले, पहले फाइंड कर ले कि 100 मीटर में कितने से बीट कर रहे हैं ना, ए 100 मीटर में सी को कितने से बीट कर रहे हैं। तो लाइक 100 मीटर का रेस है, 100 मीटर की रेस में बी और सी में 20 मीटर का गैप क्रिएट हो रहा है और जब बी यहाँ पर कितना कवर कर 80 मीटर कवर कर रहा है, तो जब बी 80 मीटर कवर कर रहा है तो कितने का गैप होगा, 16 का गैप होगा, 16 का गैप। तो ए यहाँ पर बी को कितने से बीट कर रहे हैं 36 से। तो डिस्टेंस, अब ए यहाँ से रेस स्टार्ट हुआ ए बी सी, ए यहाँ पर है सी यहाँ पर है सेम टाइम में, तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए टू सी इज कितना है, ए ने 100 मीटर कवर किए, बी ने कितने कवर किए 36 अपडेट कर दो, डेट इज 64 कवर किए। तो पूछ रहे कि 500 की मीटर की रेस में क्या होगा, 500 अगेन बीट तो ए ही करेगा, ए फास्टर ए विल बीट। तो जब ए डिस्टेंस का रेशियो से मतलब निकालना, डिस्टेंस निकालनी है ना, टाइम तुम्हारा कांस्टेंट है, स्पीड तुम्हें पता, स्पीड का रेशियो पता है, स्पीड का रेशियो ये, और डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस निकालनी है कितनी सीट कितनी कवर करेगा, डी का पता है हमें, मतलब ए का पता है, ए 500 कवर कर लेगा ए विल विन है ना, तो ए 500 कवर करेगा तो ए की हमें पता है 500 है, सी की डिस्टेंस निकालनी है और ये स्पीड का रेशियो में पता है, डेट इज 100/64, तो डेट इज 64 इंटू 5 कितना होता है 320, तो कितने से बीट करेगा 180 से बीट करेगा। या फिर यहीं पर करके देख सकते थे, जस्ट मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, अदरवाइज यहीं पर कर सकते हो, 5 से इंटू कर दो तो ये 500 हो जाएगा और ये हो जाएगा 320। तो जब ये 500 कवर करेगा सेम टाइम में, ये 320 कवर करेगा, तो कितने से बीट करेगा 180 से। आई होप दिस इज क्लियर। तो नीता loses to Divya 10 meter. So this is same question. So let me know answer of this question in the comment section with the slide number. Just values change the same question. And this is CAT 19 question. सेम क्वेश्चन अभी तक हमने जो किया वही में जो तुम्हें समझा रहा था कि 19 में देखो सेम क्वेश्चन आया, फिर 20 में भी सेम क्वेश्चन आया, रेस लाइक इसी का लेंथ पूछा, नथिंग एल्स। अच्छा ये सी है, ठीक है, ये कुछ कार सी, सेम क्वेश्चन 19 में और सेम क्वेश्चन 20 में, जस्ट वैल्यू चेंज है। सो यू हैव टू लेट मी नो आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन। लाइक एक तो इसका बताना है 14 का स्लाइड नंबर के साथ, फिर 15 का स्लाइड नंबर के साथ, 16 का स्लाइड नंबर के साथ।
let me know answer of these three 14 15 स्लाइड नंबर क्वेश्चन 14 16 16 इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड इसके सॉल्यूशन मैंने पहले ही बता रखे, लाइक अगर तुम देखोगे तो प्लेलिस्ट में देखोगे तो एंड पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, मैंने अपलोड कर रखे 17 से 9 लाइक तुम्हारा 21 तक प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर रखे, तो वहां पर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है। बट एनी वे यू हैव टू सॉल्व एंड लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर रेसेस। एंड अब नेक्स्ट सेशन में सर्कुलर रेस करेंगे। सर्कुलर रेस में कुछ एक दो नए कॉन्सेप्ट हैं दैट वी नीड टू डिस्कस। एंड आई होप यू लाइक द सेशन। मेक श्योर यू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एज वेल टेलीग्राम ग्रुप, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है। एंड आई होप यू हैव लाइक द वीडियो and make sure subscribe to the channel and share with your friends. That's it for this session. Let's meet you in the next one.